So now we're gonna study rabies virus, which is rhabdoviridae, 75 mm in diameter. Sorry, nanometers, 75 mm to 180 nanometer, and it's bullet shaped, and it has lipid bilayer. लिपिड बाइलेयर के बाद ऑन द आउटर लेयर देर इज ग्लाइकोप्रोटीन पी, ऐसे करके पूरा वायरस में हर जगह से ग्लाइकोप्रोटीन पी है. सो ग्लाइकोप्रोटीन पी एंड लिपिड बाइलेयर आर एंटीजेंस दैट आर यूज फॉर वैक्सीन, इम्यूनिटी एंड डायग्नोसिस. नाउ इसके अंदर जो न्यूक्लियोक एसिड है, द न्यूक्लियोक एसिड इज हेलिकल इन शेप, and inside the nucleic acid there is a polymerase protein, nuclear protein and negative sense linear single strand RNA. कैसे? So this is the RNA, this is the P protein, this is the N protein, and जो inner layer of lipid bilayer है, it's lined by a matrix protein, M protein. Yes, so that's the virus. Now the strain, there is two types of strains for the virus. There is a fixed strain and there is a street strain of the virus. Fixed का मतलब है कि सीरियल पैसेज, यानी वायरस सीरियली रैबिट के ब्रेन में पास किए जाता है ताकि at a point it becomes almost non-pathogenic. So it's serial passage in rabbit brain. This is lab grown. ठीक है, मतलब lab strain, lab isolation. ठीक है, because इसमें it's non-pathogenic, it's not disease causing, इसमें no Negri bodies है, salivary gland is not affected. Hence इसका जो incubation period है that's very short, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहा है, 5 to 6 days. Meanwhile ये पैथोजेनिक है, इसमें डिजीज़ होता है, नेग्री बॉडीज होता है, salivary gland is affected, and इसका incubation period is, if I'm not wrong, it's 1 to 3 months. ठीक है. Now we're gonna talk about the pathogenesis. Pathogenesis, it can be by bite of carnivorous animal like dog or bats or foxes, skunks, mongoose. बाइट के अलावा अगर इनका सलाइवा इज एक्सपोज टू आवर म्यूकोजा थ्रू अ स्किन वुंड और समथिंग, तो भी इट कैन कॉज वायरल, देयर इज नो वायरीमिया, सो इट कैन कॉज वायरुलेंस. तो उसके बाद ये भी कर सकता है, लैब वर्कर्स कैन इंजेस्ट एरोजोल्स of the bacteria, and yes, conjunctival transplant. So अगर कोई patient dies off of rabies, we're not supposed to transplant their conjunctiva. Anyways, what happens is, ये हमारा skeletal muscle है and it's innervated by a peripheral nerve. ठीक है, तो the virus is gonna come to the muscle first, फिर वो जाएगा निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर में एट नर्व मसल जंक्शन, उसके बाद ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एंटर करेगा, एंड इट्स गोना एंटर इन अ सेंट्रीपेडल फैशन. दैट मीन्स आउटसाइड से ये इनसाइड में जाएगा, एंड इट विल ट्रैवल रेट्रोग्रेड, बिकॉज साइनैप्स इस तरफ होता है ना मोटर न्यूरॉन का, तो फिर ये सेंसरी के स्टाइल में रेट्रोग्रेड फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट which is 250 mm यानी 25 सेंटीमीटर्स पर डे की स्पीड से ऊपर जाएगा. ये जाने के बाद इट्स गonna go and reach the yoric नर्व, ऐसे जाएगा, फिर और कोई नर्व है, ये ऐसे करके स्पाइनल कॉर्ड में इट्स gonna reach the spinal cord. Where is it gonna go in the spinal cord? It will reach the dorsal root ganglion and वहाँ से ऊपर जाएगा through spinal cord and it will go to the brain. Where in the brain? Cerebellum,
and hippocampus. वहाँ से it's gonna go to the autonomic nervous system and sensory nervous system of various tissues, mainly salivary gland. And वहाँ से it affects other organs like the heart, cornea and retina, kidney, and pancreas. So that's the pathogenesis. Now we're going to talk about the lab diagnosis. So lab diagnosis में we have the mnemonic NASA cures rabies. N for we have negri bodies. ये पोस्टमार्टम है, प्रीमार्टम नहीं है, दिस इज आफ्टर डेथ. तो इसमें क्या होता है, हम सेलर टेक्निक यूज़ करेंगे, सेलर्स टेक्निक विच इज़ मिथाइलिन ब्लू एंड बेसिक फुक्शिन. एंड ये दोनों को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, हम नेग्री बॉडीज़ देखेंगे. नेग्री बॉडीज़ क्या है, सेल के साइटोप्लाज्म में देर इज़ इओसिनोफिल्स, देर इज़ बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स, देर इज़ वायरल DNA, वायरल प्रोटीन. ये हमको नेग्री बॉडीज़ में दिखेगा. बेसिकली ऐसे करके एक सेल ड्रॉ करना है, उसमें अपने को न्यूरॉन बनाना है, और कोई कोई न्यूरॉन के अंदर हमने को ये इओसिनोफिलिक ये नेग्री बॉडी बनाना है. दिस इज़ अ नेग्री बॉडी, दिस इज़ अ नेग्री बॉडी, दिस इज़ अ न्यूरॉन, दिस इज़ न्यूरॉन के अंदर नेग्री बॉडी. तो ऐसे करके हमको ड्रॉ कर देना है. दैट्स N. ठीक है. और दिस इज़ 3 to 27 माइक्रोमीटर्स. इसका लोकेशन इज़ वही cerebellum and hippocampus. Cerebellum में it's Purkinje cells, hippocampus में it's pyramidal neurons. Brainstem and cortex are rarely affected but they are. और उसके अलावा और क्या क्या पॉइंट्स हैं. Oh yeah, it's present in only 80% of the cases. So 20% of the cases में this negri bodies are gonna be absent of the street virus, not even the वो वाला virus. So NASA का N हो गया. A is antigen detection. Antigen detection is gold standard method. What we're going to do is direct fluorescence assay और direct immunofluorescence हम करेंगे. इसमें हम क्या करेंगे, हम एक एंटीबॉडी को लेंगे, उसको हम फ्लोरेसेंट डाई से टैग कर देंगे, and that is gonna detect neutralizing antibodies. So it's neutralizing वाला test. No, sorry, it's not a neutralizing test. वो जो यहाँ पे एक N प्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, ये उससे इस एंटीजन से जाके अटैच कर जाएगा, एंड देन इट विल ग्लो एंड क्रोमोजन से हमको पता चल जाएगा कि वायरस आ चुका है. एंड देन वी हैव S फॉर स्पेसिमेन. स्पेसिमेन कैन बी एनी बॉडी फ्लूइड, CSF, यूरिन, सलाइवा, ब्लड, एंड हेयर फ्रॉम द नेप, दैट इज द बैक ऑफ द नेक, हेयर फॉलिकल एक्चुअली. ठीक है. और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंटीबॉडी डिटेक्शन. इसमें हम CSF का सेंसिटिविटी इज मोर देन सीरम का एंटीबॉडी, सो वी प्रेफर सीरम. NASA cures, right? So C is for cell lines. So we use baby hamster kidney cell lines and monkey neuroblastoma cell lines for isolation. Now we'll talk about prophylaxis. So prophylaxis में this category, and category is by wound and उसमें treatment. Category 1, 2, 3. इसमें there is minor scratches. इसमें wound है but no bleeds है. इसमें bleeding है और multiple wound, bleeding और no bleeding, multiple wound. तो इसमें हम क्या करेंगे, वुंड मैनेजमेंट करेंगे. इसमें भी वुंड मैनेजमेंट, इसमें भी वुंड मैनेजमेंट, बस इसमें हम वैक्सीन ऐड कर देंगे, इसमें हम वैक्सीन ऐड कर देंगे. वैक्सीन आर ऑफ 2 टाइप्स. देयर इज एंटीबॉडीज एंड देयर इज इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड देयर इज वैक्सीन्स. वैक्सीन्स में देयर इज न्यूरल वैक्सीन्स एंड नॉन न्यूरल वैक्सीन्स. इम्यूनोग्लोबुलिन्स में वी कैन यूज ह्यूमन और इक्वाइन इम्यूनोग्लोबुलिन, दोनों यूज़ किया जाता है. एंड they are passive neutralization, passive immunity because they neutralize the virus. And उसका एक डोज दिया जाता है between day 1 to 6, not after day 7.
ठीक है. दिस इज रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन. ठीक है. HRIG ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, इक्वाइन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन. तो न्यूरल और नॉन न्यूरल में क्या आता है? न्यूरल में वी हैव बिन विच इज बीटा प्रोप्रायो लैक्टोन डिराइव्ड. ये कन्नूर में डेवलप्ड है. आई से इन्फेंट ब्रेन एंड BIS एंड S से सिंपल. ठीक है. नॉन न्यूट्रलाइजिंग में भी हैव सेल लाइन डिराइव्ड. ये 6 months तक प्रोटेक्शन देते हैं. सेल लाइन में भी हैव PCEC, PVC, HDC. ह्यूमन डिप्लॉयड सेल डेवलप फ्रॉम W138 सेल. और इसको हम इंट्राडर्मल और इंट्रामस्कुलर देते हैं. प्यूरिफाइड वेरो सेल फ्रॉम वेरो सेल लाइन्स. प्यूरिफाइड चिक एम्ब्रियो सेल फ्रॉम चिक फाइब्रोब्लास्ट cell lines. This is all about rabies.